Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu Wa Taala. Myself, Ms. Abidia Gohar, your science teacher. While student, in the previous lecture, we have discussed the strength and concentration of acids and alkalis. Now let's open your book without wasting our time. Let's take a review of the previous topic and continue our today's lecture. And I have also given you few questions to solve as well. Firstly, we will take the review of the topic, then we will discuss the answers of the questions, then we will go for our today's lecture. Okay, indicators and acid strength. Indicator which indicate whether it is the acid or अल्कली, यानी कि जो आपका सोल्यूशन है वो एसिड है या अल्कली है, आप उससे आपके इंडिकेटर्स डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज होते हैं, उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं. ठीक है, उसके साथ एसिड स्ट्रेंथ यानी कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है. और उसके बाद हमने देखा पीएच स्केल. पीएच स्केल हमें बताता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, यानी कि पीएच की वैल्यू पर डिसाइड होता है कि whether the solution is acidic or basic or neutral. When the pH is 7, your solution is neutral, and when your pH is less than 7, it is acidic, and when it is more than 7, then your solution is basic. Then we have dilute and concentrated solutions. Acids, okay, when there is more water added in the solid, then it is mean that your solution or your acid is diluted. When the concentration of hydrogen ion is more, then it's mean your acid is strong. Okay, when less water is added, then your acid is concentrated. When more water is added in the acid, then it is dilute. Strong versus weak acid means when the pH of acid is less than 7, nearby 7, less than 7, but it is near to 7, then it is weak acid. When its pH is near to 1, 2 or far away from 7, okay, more less than 7, then it is your acid is strong acid. Then we have indicators. In indicators we have litmus paper which turn blue to red and red to blue according to acid and base. In acids, your blue litmus paper turn red, while in alkalis your red litmus paper, here is a diagram, red litmus paper turn blue. Then we have some indicators, that is litmus paper, phenolphthalein, methyl orange and bromothymol blue. These are the indicators. Sorry, I have tongue twist. ठीक है, ये आपके indicators हैं, and these are the colors which they take when they are in acid, and these are the colors when they are in alkalis. And this is a pH scale. pH 7 is neutral. When it is more than 7, then it is alkali, and when it is less than 7, then it is acids. Okay, these are the questions which you have to ask to solve by yourself. Number 1, by what is the strength of an acid measured? Acid की strength किससे measure की जाती है? pH से. These are the one word answers. Okay. How is the strength of an acid affected by the number of hydrogen ions it contain? हाइड्रोजन आयन जो आपके एसिड में मौजूद होता है वो एसिड की स्ट्रेंथ पर कैसे अफेक्ट करता है? मीन्स द स्ट्रॉन्गर द एसिड द मोर हाइड्रोजन आयन कैसे अफेक्ट करेगा? जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ज्यादा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि उतनी स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, और जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी स्ट्रेंथ एसिड की कम होगी. व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन की? pH 7 है, एसिड सोल्यूशन की लेस देन 7 है, और अल्कली की मोर देन 7 है. ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में क्या फर्क है? ठीक है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट. इफ देयर इज मोर वाटर प्रेजेंट, there will be low concentration of acid, and if there is less water present in the acid, then the acid concentration is high. On the other hand, the strength of acid is depend on the presence of hydrogen ion in it. यानी कि आपके कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज्यादा ही आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी.
ओके, नेम 3 इंडिकेटर्स एंड से व्हाट कलर दे आर। इंडिकेटर्स, एसिड के 3 इंडिकेटर्स के नाम लिखें, अल्कली के लिखें और उनके कलर्स बताएं। हेयर 3 इंडिकेटर्स कोई भी ले लें, लिटमस पेपर, फिनोल्फिन, मिथाइल ऑरेंज। एसिड में उनके कलर रेड, कलरलेस ऑरेंज, और आपके अल्कली में उनका कलर ब्लू, पिंक एंड येलो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। नाउ कम ऑन पेज नंबर 114. Let's start our today's topic. Our today's topic is neutralization. Neutralization क्या है? When an acid and alkali are mixed together, जब alkali और acid mix होते हैं, they cancel each other out और neutralize each other. वो एक दूसरे के effect को cancel out करते हैं. The diagram show what happened. diagram बता रही है क्या होगा when an acid is added to an alkali. जब acid को alkali में add किया जाएगा with universal indicator in it, यानी कि इसके अंदर indicator डालकर आप उसके बाद चेक करेंगे कि एसिड और बेस मिलाने से क्या होगा। एट स्टार्ट में बिफोर एनी एसिड इज एडेड, कोई भी एसिड ऐड होने से पहले द इंडिकेटर इज पर्पल, इंडिकेटर का कलर क्या है, पर्पल है। एज ड्रॉप ऑफ एसिड आर एडेड, जैसे ही एसिड के ड्रॉप ऐड किए जाएंगे द अल्कली इज स्लोली कैंसल आउट, द अल्कली इज स्लोली कैंसल आउट, यानी कि अल्कली का जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस कॉजेज द इंडिकेटर टू चेंज कलर ग्रेजुअली, जिसकी वजह से जो कलर होगा इंडिकेटर का वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली आखिरकार इट बिकम्स ग्रीन, वो ग्रीन हो जाएगा। द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जैक्टली द राइट अमाउंट ऑफ एसिड हैज बीन एडेड टू न्यूट्रलाइज ऑल ऑफ द अल्कली। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आपने क्या डालनी है, एसिड डालनी है। अगर आप एसिड ज्यादा कर दोगे तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, वो बेसिक नहीं रहेगा। और अगर आप बेस ज्यादा कर दोगे तो सोल्यूशन बेसिक रहेगा, अल्कलाइन रहेगा, आपका एसिडिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली डालना है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये देखें आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कली प्लस इंडिकेटर, नो एसिड एडेड। ये देखें आपने इसमें इंडिकेटर डाला, एसिड इज एडेड फ्रॉम सिरिंज। एसिड किस में डालेंगे, सिरिंज के जरिए डालेंगे, बट अभी इसमें कोई एसिड मौजूद नहीं है, पर्पल कलर का है। आपने क्या किया, अल्कली में इंडिकेटर उसके साथ 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, देखिए 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कली था और 9 सेंटीमीटर क्यूब एसिड डाला, उससे कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब देखें जैसे ही दोनों की क्वांटिटी सेम हुई, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कली है और उतना ही एसिड ऐड कर दिया तो इंडिकेटर ने आपका ग्रीन कलर ले लिया। इसका मतलब है आपका सोल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ना ये बेसिक है ना ये एसिडिक है। ओके, जैसे ही हमने थोड़ा सा एसिड ज्यादा डाल दिया तो ये रेड कलर का हो गया, मीन्स कि ये एसिडिक हो गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि किसी चीज को न्यूट्रल करना, ना वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, test yourself. Here is also questions of test yourself. There are 2 questions. You have to find the answer of these questions by yourself. Explain why the indicator changes color during the neutralization reaction shown on this page. इंडिकेटर ने कलर क्यों चेंज किया जो इस पेज पर शो किया गया है। एक्सप्लेन द pH वैल्यू एट स्टेज 1, 2, 3 एंड 4. pH वैल्यू को एक्सप्लेन करें एट स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड 4 पर आप अपने pH वैल्यू को एक्सप्लेन करें। Okay students, this is all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture we will discuss this topic again with deep understanding, with taking more example. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and try to find out the answer of these questions by yourself. Do it by yourself. Do mistake, but do it by yourself. It will enhance your understanding. Okay student, we'll meet in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.